Good afternoon, friends. Good afternoon, friends. I'm Vivek Mantri. I'm Vivek Mantri, an electronics engineer turned into an emotional wellness coach. I'm also a certified life trainer, certified NLP trainer, and a certified life coach. Today, I thanks to Nanna Gyan Foundation for taking up the initiative on women empowerment. एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई है, बहुत सारे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओस काम कर रहे हैं. Today we'll try to discuss something more about women empowerment. So I would say, do women really need empowerment? Yes, it's my question. Do really women need empowerment? Absolutely no. Yes, absolutely women don't need any empowerment. Reason, women are already empowered. Women are already empowered. The day you are born, you have that creativity in you, you have that power, you have that passion in you. Since our ancient days, we have seen whether it is the Nari, which is worshipped in form of Shakti, which has always been the front end to kill the devils, to kill the demons, to kill the negativity. तो कहाँ पर चाहिए वुमेन को empowerment? Women are already empowered. It is the only thing that they need to realize themselves that yes, there is a power within them. There is a power within them which has been conferred by the universe, which has been conferred by the final supreme power. आप सब में वो power है. If we see the present era, whether it's Dr. Kiran Bedi from the police force or Mithali Raj from Indian cricket team, or if we go few centuries back, Savitri Bai Phule, Veer Jijamata, they all were women and they have proved that they can lead and create a life, they can create a history. So, definitely, women are empowered. They have all the power within themselves to make it happen. In the present era, what is needed is we should enable women to use their own powers, to use their inner powers, and to make it happen. आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट के जितने भी नए फंडिंग्स आते हैं, whatever new things are coming up, definitely everyone speaks about women empowerment. Everyone speaks about that how definitely we should enable women by various processes, by various fundings, by various schemes. Everything works out, but still there should be something different which can actually feel the woman empowered. जब आप कहते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट, इट इज ऑल अबाउट हाउ वी आर एडिंग द लाइफ टू द वैल्यू ऑफ द वुमेन. बट इज इट रियली नेसेसरी? मैं कहता हूँ कि वुमेन ऑलरेडी हैव दैट कैपेबिलिटी, दे हैव दैट इनहेरिट पावर, दे हैव दैट कैपेबिलिटी टू मेक इट हैपन. द ओनली थिंग व्हाट हैपन्स इज due to the present era, due to the conservative upbringing, maybe due to conservative upbringing, conservative society, or no matter what, various things are contributing to various women who at times tend to suppress their feelings, tend to suppress their emotions, tend to suppress their thoughts कि उन्हें क्या कहना है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. When we say empowerment, it is not only about giving them the tools or something like that. It's about making them feel that yes, they should express. उन्हें एक्सप्रेस करना आना चाहिए. बहुत सारे ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर वो फीमेल्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, एंड जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तब आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सप्रेस करते हो खुद को. एंड जब आप सप्रेस करते हो तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या आते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. बट माय मेन पॉइंट इज women don't need empowerment. Women are already empowered. They have all the capacity, they have all the power within them. The only thing is they need to realize their importance, they need to realize their power within them. जो उनके अंदर खुद की शक्ति है वो उन्हें खुद महसूस होनी चाहिए. एंड जब वो खुद की शक्ति को जगाना जानती हैं तो आपने देखा है वुमेन हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, वुमेन हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वुमेन हैव क्रिएटेड हिस्ट्री एंड आगे भी होगा. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाएं. इट्स नॉट अबाउट स्कीम्स वगैरह, सब ठीक है. आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ
आई विल नॉट डिस्कस अबाउट एनी वुमन एम्पावरमेंट, उस पे तो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक सब जगह भर भर के चीजें पड़ी हुई है। एवरीवन हैज स्पोकन अबाउट वुमन एम्पावरमेंट, सो मैं और दूसरा क्या बोलूंगा, कुछ नहीं बोल सकता हूं मैं। बट टुडे आई एम हियर टू हेल्प यू वुमन with few techniques which can help you to see how different your life can be. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा which will help you to understand that why woman empowerment is important. जब मैं खुद एक NLP ट्रेनर हूँ, एक कोच हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं and many like 90% of my clients are females. What happens is, I'll give an example. Suppose अगर मैं आज आपको एक आधी बोतल दूध देता हूँ, एक आधा बोतल दूध आपको दिया है मैंने और कहा कि आप इसको ऐसा ही रख दीजिए, कीप दिस बॉटल असाइड फॉर लाइक 1 month, डोंट टच इट, नॉट इन द रेफ्रिजरेटर, जस्ट ऐसे बाहर रख दिया है। अब आपको अगले महीने में आके जब कहूंगा कि अब आप इसमें नया दूध भर दीजिए, व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे उस केस में? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल से, रादर एवरीवन विल से कि आप उस बॉटल को धो दोगे फिर उसमें नया दूध भरोगे, क्योंकि आने वाला नहीं तो नया दूध फट जाएगा। बट माई क्वेश्चन इज डियर फ्रेंड्स कि आप सबने ये सच में अपनी लाइफ में किया है क्या? आई मीन इट, आप सभी ने ये आपकी लाइफ में किया है क्या? जब आप कहते हो कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई ट्रॉमास होते हैं, एनीथिंग, any suppression, anything which directly affects your subconscious mind, it affects your body and mind. आपने सच में ये चीजें की हैं क्या? What I'm talking about is your experiences which you have taken all these years in your life. Have you really learned out of those experiences? And जो भी trauma है वो आपने सच में निकाला है क्या? आपकी जो बोतल है, जो बॉडी हमको मिलती है जब हम पैदा होते हैं, एक ही बॉडी हम लेके आते हैं, वी कांट गेट द स्पेयर पार्ट्स। तो यहाँ पर आप जो भी स्टोर करते हो, आपके पुराने इंसिडेंट्स, पुराने जितने भी इम्प्रिंट्स हैं, you are just storing all those negative emotions, negative suppressed emotions, everything, and finally you add up new experiences, new relationship, whatever it is. So what happens in your life? 99% of the times when you are not releasing your old patterns, when you are not release your old thoughts, आपका जो भी सप्रेस्ड लाइफस्टाइल अगर रह चुका है, अगर आप उसमें से बाहर नहीं आते हो, बस नया उसमें ऐड करते हो, तो नई आने वाली चीजें भी खराब हो जाती है। आज मैं आपको, जैसा मैंने कहा, एम्पावरमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, बट टूल्स ऐसे दूंगा जो आप खुद यूज कर पाओगे, आपके लिए, आपकी खुद की लाइफ के लिए आप यूज कर पाओगे, कि आप इन टेक्निक्स को यूज करके आपकी खुद की लाइफ, आपके आजू बाजू में अगर कोई है, कोई अगर आपके पास आता है, यू कैन हेल्प देम विद दिस टेक्निक्स एंड मेक देयर लाइफ इजियर। बिकॉज most of the women, most of the female friends whom I have met, whom I have worked with them for various projects, or even the clients who come to me, suppression एक बहुत important factor होता है। They tend to suppress their thoughts, they tend to suppress their things, या कोई suppose issue होता है, कोई incident होता है life में, they are not allowed to express themselves, and ऐसे जब आप suppression करते जाते हो, down the line it directly affects your body, जिसको आजकल साइकोसोमैटिक डिजीज भी कहा जाता है। जब आप किसी चीज को दबाते हो, माइंड लेवल पे दबाते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म पे या आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। तो आज हम जो टूल सीखेंगे, इट्स अबाउट एम्पावरिंग योर माइंड्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन बट इट्स कंप्लीटली एम्पावरिंग योर माइंड। अगर आपके खुद के माइंड को आप एम्पावर करते हो विद द राइट टूल्स, you will see that you are able to add value to your life, your family, and when you are able to add the value to your life, when you are able to add the value to your family, in turn you are adding the value to the society. एक घर सुधर जाता है, समाज सुधर जाता है, बट अगर एक घर बिगड़ जाता है तो पूरा समाज बिगड़ने के लिए वक्त नहीं लगता है। एंड ये क्षमता, ये कैपेसिटी सिर्फ एक वुमन में होती है, दैट शी कैन मेक एंड क्रिएट द मेक द सोसाइटी और क्रिएट द सोसाइटी। ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल में होती है। तो आज का ये जो टॉक है, ये मैं तमाम नारी शक्ति को समर्पित करता हूँ। आगे जब हम अब ये टेक्निक्स देखेंगे, टुडे एवरीथिंग व्हाट आई से इज लाइक
completely dedicated to all the Navi Shakti, all the Shakti inside you, who will be watching this video now or later, and you will experience that yes, these techniques are useful. तो कितने लोग तैयार हैं आपके खुद के लाइफ की बॉटल को क्लीन करने के लिए? यू डोंट हैव टू टेल मी what is your past painful memory, what is the trauma which has actually bothered. एंड ये टेक्निक्स मैंने अपने लाइव वर्कशॉप्स में लोगों को सिखाए हैं, अपने पेशेंट्स अपने क्लाइंट्स के साथ किए हैं. दे आर वेरी पावरफुल एंड दे गिव यू इमीडिएट रिजल्ट. तो कितने लोग जानना चाहेंगे कि आप ये सच में कर सकते हो क्या? आप लोग कहोगे कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू टेल द पर्सन कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, देन द साइकोलॉजिस्ट और द काउंसलर विल टेल यू सम मेथड्स. बट हियर आई कम विथ एन अमेजिंग टेक्निक जो आपको आप खुद एनेबल करेगा कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो. किसी भी सिचुएशन से आप अगर कोई ट्रॉमा है, कोई डीप रूटेड मेमोरी है, एनी ब्लॉकेजेस, you will be able to make it happen. So friends, I'm sure everyone would love to learn this technique. जो भी अभी लाइव देख रहे हैं, you can post in your comment box that yes, you would love to learn the technique. I'm always here to resolve your queries. कोई भी query है, हम यहाँ live interaction भी कर सकते हैं. You can post it in your comment box and reply it here itself. So as I said, women don't need empowerment; they are already empowered. The only thing what we need to do is help them with certain skill sets or maybe with certain techniques which can make them emotionally stable. जो भी चीजें हैं, because 90% of the times women are most susceptible to emotions. वो आपके लिए सब कुछ, आप फैमिली के लिए सब करते हो, आपके खुद के लाइफ के लिए करते हो, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप सबके लिए करते करते खुद के लिए करना भूल जाते हो. Most of the women, they do everything for the family, but at the end of the time they forget to do something for themselves. I'll put it this way. जब आप फ्लाइट में जाते हो, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड द फ्लाइट. आप फ्लाइट में क्या सीखते हो? एनी आइडिया? आप फ्लाइट में जाके क्या सीखते हो? दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच वी लर्न इन द फ्लाइट. वहां पर जब वो एयर हॉस्टेस आती है, तब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र देती है. शी गिव्स अस द इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द लाइफ which we very often even ignore that air hostess, and हम सुनते भी नहीं है कि वो क्या जो भी बड़बड़ने दो. But what is that important tip which she gives us in the flight? She says that under any panicky situation, before you help out your other fellow passengers, put your own mask first. इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आपके घर पर भी अगर कुछ है, घर पे कोई इश्यूज है, अगर आप कहीं पर टीचर है, कहीं किसी कंपनी में है, कहीं पर भी है, if you are under any panic situation or if you really want to create a change, first is start your change with yourself. जब तक आप वो चेंज खुद में नहीं लाओगे, जब तक आप खुद का ऑक्सीजन मास्क खुद नहीं पहनोगे, तब तक आप दूसरों की मदद नहीं कर सकोगे. और else there will be a condition that सच में अब लोगों को आपकी जरूरत है, बट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, क्योंकि आपने पहले खुद की ही मदद नहीं की. कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सेप्ट हु आर वाचिंग दिस लाइव? डू यू थिंक दैट आई एम स्पीकिंग सेंस? अनलेस एंड अंटिल यू help yourself, unless and until you are enabled, you will not be able to help others. आपको ये देखना है कि put your own mask first. जब आपका खुद का मास्क आप पहनोगे, तब आप जिंदा रह पाओगे, तब आप कुछ फैमिली के लिए वैल्यू ऐड कर पाओगे, तब आपके समाज के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे. अगर आप किसी कंपनी में है तो वहां पे वैल्यू ऐड कर पाओगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पुट योर ओन मास्क फर्स्ट. ये बेसिक रूल है, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, वुमेन हो, किसी के लिए भी पुट योर ओन मास्क फर्स्ट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट आज हम लोग क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, we are also talking about which techniques can be used directly to help yourself to come out of that past painful memory, to help yourself to come out of that trauma, that deep rooted trauma जो आपके बचपन से हो सकता है या किसी रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So let us start with a simple technique. I'm sure most of you will love to do it. तो अब आपको क्या करना है? Sit straight.
I'll also do it with you. Let us do it together. सीधा बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, एंड अब सभी लोगों ने कुम्हार का पहिया देखा हुआ है, अ पॉटर्स व्हील, कुम्हार जो पहिए पे मटके बनाता है. एवरीवन हैज सीन दैट पॉटर्स व्हील. अब आपको क्या करना है, आंख बंद करके आपके लाइफ का जो भी सबसे पेनफुल इवेंट होगा, कुछ भी हो सकता है. आई विल नॉट आस्क यू, नाइदर यू हैव टू टेल मी, but this technique you can do it with anyone without even asking them that what has gone wrong in their life. It will make their life easier. So let us do it. यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद करके आपकी आंखों के सामने जो भी आपका सबसे पेनफुल इवेंट है वो आंखों के सामने लेके आइए. उसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए. अगर आंखों में से पानी आता है तो भी कोई मतलब आंख मत खोलिए, आप उसको महसूस कीजिए, क्योंकि मैं यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद वो इंसिडेंट आपके लाइफ से काफी हद तक चला जाएगा, उसके इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ. आपको साइकोसोमैटिक डिजीजेस नहीं होंगे, आपकी लाइफ एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाएगी, क्योंकि आप सप्रेस्ड इमोशंस निकाल सकोगे. तब आपको ये करना है कि आंख बंद करके सबसे पहले उस इवेंट को आंखों के सामने लाइए. फिर वो कुम्हार का जो पहिया है उस पहिए पर उस इवेंट को रख दीजिए, ज्यों के त्यों, जैसा कि तैसा, लाइव उस कुम्हार के उस पहिए पे उस इवेंट को रख दीजिए. जैसे ही आप उस इवेंट को रखते हो, अब आपको क्या करना है, कीप दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑन दैट पॉटर्स व्हील. नाउ कीपिंग योर आईज क्लोज्ड, you have to rotate the wheel clockwise and anti-clockwise as I say. When I say one, you have to rotate the wheel in clockwise. When I say two, you have to rotate the wheel in anti-clockwise. ध्यान में आया? क्या करना है आपको, क्लोज योर आइज, आंखों के सामने वो इवेंट लाइए, उसको महसूस कीजिए, जो भी इवेंट है उसे एक्चुअली महसूस कीजिए, एंड अब उस इवेंट को वैसे के वैसे हाथ से उठाइए और उस पॉटर्स व्हील पे रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए. देखिए कि वो व्हील वहां पे, वो व्हील पे अपने वो रख दिया है. जैसे ही आप उस व्हील पे उसको रख देते हो, अब क्या करना है आपको, विजुअलाइज कीजिए कि जैसे ही मैं वन कहूंगा, या आप खुद के लिए भी जब करना चाहेंगे, वन कहिए, उस पॉटर्स व्हील को राइट में घुमाइए. टू कहेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए. सो लेट अस डू इट. Keep your event on the potter's wheel, and now we will do the actual exercise. I have explained you the complete concept. Now we'll do the actual exercise. Put that entire event on that wheel. Now, as you are listening my voice, the moment I will say 1, you have to rotate the wheel clockwise. The moment I say 2, you have to rotate the wheel anti-clockwise. So let us start. And as you are rotating the wheel, see that that event is completely shattered into the pieces and it is getting converted into the rose flowers. या आपका जो भी पसंदीदा फूल है उसमें वो पूरी तरह से इवेंट कन्वर्ट हो रहा है. आई एम श्योर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्लियरली. सो लेट अस डू इट. Put that event on the wheel. Let us start. 1, 2, 1, 2. आंख बंद रखनी है, आंख में से पानी आया तो भी आंख नहीं खोलनी है. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1 is clockwise, 2 is anti-clockwise. 1 is clockwise, 2 is anti-clockwise. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 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 2, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 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 2, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop. अब धीरे से आपके हाथ मलिए एंड आपके चेहरे पर रखिए. Keep your hands on your, rub your palms and keep them on your face. And very slowly visualize as if a strong white light is coming inside your body, and very slowly open your eyes. धीरे धीरे आपकी आंख खोलिए. अब वापस उस इवेंट को याद करने की कोशिश कीजिए जो आपने उस पॉटर्स व्हील पे रखा था. उस इवेंट को याद करने की कोशिश कीजिए. मुझे यकीन है कि आप में से कम 70% लोगों का
वो जो इवेंट है आपको याद ही नहीं आएगा, या उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हुई होगी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, या कुछ लोगों को बिल्कुल याद नहीं आएगा। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं वो इवेंट है कहीं पर, तो उसको वापस रिपीट कीजिए। अब रिपीट करते वक्त आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे वो आया था, सपोज अगर पहले आपकी इंटेंसिटी 10 आउट ऑफ 10 थी, क्योंकि वो आपको महसूस होती है, जैसे ही आप करोगे तो आपको पता चलता है कि वो इवेंट कितना पेनफुल है। तो जब आप उस इवेंट को 10 से 5 पे सपोज आया है, तो अगली बार उसको 5 से नीचे लेके आइए। अगेन डू द सेम थिंग, कीप दैट इवेंट ऑन द पॉटर्स व्हील, 1 2 1 2 1 2 1 2, एंड ये 1 2 आपको सीक्वेंस में सिर्फ शुरू में करना है। शुरू में 1 2 1 2 1 2 करना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। उसके बाद ये आप ये सीक्वेंस कैसे भी ले सकते हो, 1 1 1 1 2 2 2 2 2, उसको पूरी तरह से मिक्स कर दीजिए। इतना मिक्स कर दीजिए कि आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन उस इवेंट को पूरी तरह से भूल जाए। वो जो पिक्चर आपके दिमाग में बनी हुई है, वो जो इवेंट आपके दिमाग में बना हुआ है, वो पूरी तरह से आपके दिमाग में से निकल जाएगा। इस बात को मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस ऑन माय पेशेंट्स, ऑन माय क्लाइंट्स। आपके 90% डिजीजेस ठीक होने में इससे मदद हो सकती है, क्योंकि आपके जो पुराने चूहे मरे हुए होते हैं सिर में, जो भी पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, वो आप पकड़ के रखते हो। आपने वो बोतल अगर धोई ही नहीं और उसमें बस आप नया दूध भरते जाते हो, तो नया दूध सड़ेगा ही। अगर आप कोई नया घर खरीदते हो, नए घर में आप चाहे कितनी भी पूजा कर दो, अगर उसमें कोई पुराना सड़ा हुआ चूहा है, तो चूहा बदबू देगा ही। कोई अगर पुराना आपका इवेंट है, ट्रॉमेटिक इवेंट है, चाहे फिर वो अब्यूज हो, चाहे किसी ने कुछ कहा हो, चाहे स्कूल में ही टीचर ने कुछ कहा हो, जिसकी वजह से आज मैं देखता हूं जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कॉर्पोरेट्स में भी, when the men men can speak but many women are not able to speak, even men have the problem, क्योंकि वो सड़ा हुआ चूहा कहीं ना कहीं ऐसा बैठा होता है दिमाग में कि वो आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। So it is a right time for you to work on those things which are really bothering you. आज आज का एज ऐसा है जहां पे वुमेन हैव टू बी कॉन्फिडेंट, वेदर इट इज फॉर देयर फैमिली लाइफ, वेदर इट इज फॉर देयर पर्सनल लाइफ, या आप सोसाइटी में कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई कोच हो, कोई ट्रेनर हो, कुछ भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस यू कैन एक्चुअली रिमूव ऑल दोज ओल्ड डेब्रिज, जो पुराना सब माल मसाला भरा हुआ है जिसका आपको कोई जरूरत नहीं है, ये निकालना बहुत जरूरी है। एंड जब आप ये पुराना सब जब ये सड़ी हुई चीजें जब आप दिमाग से निकाल दोगे, तो आप देखोगे कि आपका नया जन्म 5 मिनट में होता है। आफ्टर 5 minutes itself you will start feeling that yes something is good. आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये टेक्निक बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। और एक टेक्निक बता देता हूँ, इसमें आपको क्या करना है, एक आपको ब्रीदिंग पैटर्न सिखाता हूँ। दिस ब्रीदिंग पैटर्न has been it's a proven breathing pattern. आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर ब्रीदिंग कहते हैं, एंड आई टीच दिस इन माय इमोशनल वेलनेस वर्कशॉप, जो अभी आने वाले मेरे 21-22 को भी मेरे वर्कशॉप है ऑनलाइन जूम पर। इस पे ये टेक्निक आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। इसमें आपको क्या करना है, क्लोज योर, लेट अस डू इट राइट नाउ, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, एंड नाउ ऑन द काउंट ऑफ 4, ऑन द काउंट ऑफ 4 इनहेल 1 2 3 4। पूरा आराम से जब आप 4 गिन रहे हो, उसी पेसिंग में पूरा इनहेल कर दीजिए। अब ऑन द काउंट ऑफ 4 होल्ड दैट पर्टिकुलर ब्रेथ विच यू हैव टेकन, उसको होल्ड करके रखिए 1 2 3 4। अब आपको एक्सहेल करना है, पूरी तरह से आपकी बॉडी में से जो आपने ब्रेथ अंदर लिया हुआ है, ऑन द काउंट ऑफ 4 पूरी तरह से उसको एक्सहेल कर दीजिए, एंड देन बी एम्प्टी फॉर 4। बिल्कुल आपकी बॉडी को एम्प्टी रखिए 4 तक। जैसे ही आपका 4 गिनते होगा, वापस शुरू कीजिए, ब्रीथ इन फॉर 4, होल्ड इट फॉर 4, एक्सहेल इट फॉर 4, एम्प्टी फॉर 4। ये साइकिल जो है, ये साइकिल अगर आप 10 मिनट भी रिपीट करते हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके मैक्सिमम टॉक्सिन्स बॉडी में से निकल जाएंगे। आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू हो सकती है। ये स्क्वायर ब्रीदिंग की टेक्निक बहुत अच्छी है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बिकॉज वंस योर इम्यूनिटी इज स्ट्रांग,
यू आर एबल टू फाइट बैक अगेंस्ट एनीथिंग। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, देखा गया है कि लाइक मोस्ट ऑफ द वुमेन हु हैव द इश्यूज रिलेटेड टू इवन एंगर, इम्यूनिटी आपकी जल्दी इफेक्ट हो जाती है। अगर आप गुस्सा करते हो तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। एंगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू सप्रेस योर इम्यूनिटी, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ये स्क्वायर ब्रीथिंग करते हो तो आप आपके बहुत सारे इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। एंड व्हेन योर इमोशंस आर अंडर योर कंट्रोल, you will see that your life is becoming awesome. Woman empowerment is all about helping yourself first. बहुत सारे, जैसा मैंने भी पहले भी कहा, एनजीओ सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं, बट आप ये टेक्निक्स खुद के लिए यूज कीजिए। एम्पावर योर सेल्फ बिकॉज यू हैव दैट पावर। आप नारी हैं, आप शक्ति है, आप सिंस एंशिएंट हिस्ट्री यू हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री। सो नाउ इट इज अ टाइम फॉर यू टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। If you don't value yourself, no one will value yourself. ये मैं बता सकता, it's known. If you don't value yourself, no one will value yourself. If you don't stand up for yourself, no one will support you. सिर्फ बस में रिजर्व सीट्स, ट्रेन में रिजर्व सीट्स मिलना एम्पावरमेंट नहीं है। It is about standing for yourself. And when you are able to stand for yourself, you will see that you are feeling truly empowered. ये दोनों टेक्निक जो आज हमने देखी हैं, आई वुड ऑनेस्टली से कि आप खुद के लिए यूज कीजिए, आपके घर वालों के लिए यूज कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिकॉज व्हेन द पर्सन चेंजेस, ही और शी कैन चेंज द हाउस। जब एक घर बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो देश बदलता है। अपने हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, वुमेन हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री हैव ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम। वीर माता जिजाबाई, उन्होंने घर से शुरू किया। पहले शिवाजी को इतना एनेबल किया कि फिर बाद में शिवाजी हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, स्टार्ट विथ योर सेल्फ। आपके घर से शुरू कीजिए, आप देखोगे कि एम्पावरमेंट आपके अंदर है। एंड you are truly empowered, and I really bow to all the ladies, all the women in my life, all the women friends, all the female friends, and my wife who has been supporting me all the way. Today, whatever I am, my wife has a very big role in that. I really respect her. I bow to her because she has created a tremendous backup for me. Every woman has that power. So stand up for yourself. आप जब खुद के लिए खड़े रहोगे तो आप देखोगे समाज आपकी इज्जत करता है, आपके घर वाले आपकी इज्जत करते हैं। So value your thoughts, value yourself, and you will see that life is easy. कोई भी कंसेप्ट है अभी भी, यू कैन आस्क मी द लाइव क्वेश्चंस। आई एम ओपन हियर टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस बिकॉज फाइनली इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग योरसेल्फ। So you can ask your questions. I am here to reply you. आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उसको जवाब दूंगा। आगे चल के भी जब अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर 8551099009 है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। या फेसबुक पे भी आप मुझे देख सकते हो। आई एम अ सर्टिफाइड NLP ट्रेनर, अ सर्टिफाइड एडवांस hypnotherapist, and I work on psychosomatic issues, whether it's whatever it is. Finally 85% of the diseases जैसे कहते हैं साइकोसोमैटिक होते हैं। So women, I request all of you, आप जितना भी पुराना बैगेज है, जितना भी पुराना गार्बेज है, which one or the other way has been fit in your mind, knowingly unknowingly, आज हमने जो टेक्निक सीखे हैं इनको यूज कीजिए and you will see that your life is becoming easy. You will see that you are able to add value to your life and you are able to add value to society. So I hope ये दोनों टेक्निक्स आप समझ गए होंगे। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने अपना नंबर बताया है। आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड नन्ना ज्ञान फाउंडेशन तो है ही। ऑल थैंक्स टू रोमल, शी इज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। उसने जो ये ग्रुप शुरू किया है, it has created value, it has added value to lives of many people. नन्हा ज्ञान फाउंडेशन ही इतना, नाम ही इतना अच्छा है that it helps you to add something in someone's life. नन्हा ज्ञान वर्ड ही बहुत कैची है।
and they are doing really good job. Thanks to Romal for providing me the opportunity. It is really a good platform where people should join and try to add value to the society, क्योंकि 6000 लोग एक ग्रुप में जब होते हैं so it is as good as a big society, and everything which comes in the group can definitely create a value in someone's life. So with this, I'm really thankful. I'm thankful to Romal, or I'm thankful to all the Nanha Gyan Foundation team who could make this possible. एंड मैं अपना छोटा सा जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो मुझे बात करनी थी, जो कंसेप्ट था मेरे दिमाग में, आई कुड पुट इट फॉरवर्ड विथ योर सपोर्ट. सो ऑल थैंक्स टू यू, एंड आई रियली विश आपका ग्रुप और ज़्यादा बढ़े एंड आप समाज में एक बहुत बेहतरीन बदलाव लाएं. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.